I'm Jayashree Kurup, I'm editor at NDTV, and we're talking about the plot market in Pune. So, what are the things that you must check before buying plots in Pune? And joining me on the show is Krishna Sharma, he's director of the Krishna Group. Krishna, thank you for joining us. We have Pankaj Gujrani, who's the director of My Land, My Pride, who will be joining us shortly. And there's Swapnil Kothari, who's a senior lawyer from Mumbai. Thank you, gentlemen, for joining us. Uh, First of all, Swapnil, let me start with you. When somebody buys a plot in Pune, would you like to give us a rule of thumb? What are the 4 5 things that you should check before you buy? Right. Before I would, if it was me who would go and buy a property in Pune, the first thing that I would look for is the identity of the seller. Whether the seller is an appropriate person, check his Aadhaar, check his PAN, check whether he's, a proper, citizen, with no criminal background, etc. Those kind of things. To find out a criminal background would be a little difficult, but nowadays in with Google availability and with access to a lot of courts sites, you can literally go and check all that. That is the first thing that we'll do, and then secondly, we'll check up the municipal aspects of the property, which is in the sense that whether the property is properly registered, whether it has got the requisite approvals, whether it the construction that has taken place or is taking place has got the approvals from the municipal authorities. Now, if it's a under construction property, these are the approvals that I would check. Even if it's a constructed property, I would try to look at all the approvals that are in place. If all the approvals are in place, and then if all the approvals are in place, is there an occupation certificate? Because if before I go and buy, I need to check whether there is an occupation certificate or not, that there is an occupancy certificate. Otherwise, if there is no occupancy certificate given by the municipal authorities, then I cannot go and stay technically, legally. But people still do that. Nahi mila to bhi theek hai. You'll go and get it in the future and all those kind of things. But this is something. These are the basic 2 or 3 things that I would look at, and then of course whether that property is free from any encumbrances. In the sense that if it's a company, then I would check up with the registrar of companies. Whether those its property is under a mortgage or whatever, because I don't know. If it's a company which is owning a property, the company could have taken some huge amount of loan on the basis of that property, and I don't know, and it still keeps on selling me that property, or a flat in that property, or a commercial plot in that property, saying that sab kuch theek hai. But that is because when he shows me the title, the title and everything will be correct. Everything will be correct. Everything will be in order. These are the municipal rules. This is the title. Everything is fine. Even I am valid. Look, my managing director, he's got proper Aadhaar, PAN, etc. Everything, we are all perfect. But whether it's under any encumbrance, so that is something which I'll have to go to the register of companies and check, because I don't want tomorrow to the bank to come and say that, look, I was already having some sort of a grip on this property earlier because I lent some money to this guy. But sorry, if you just bought it, then of course, there could be legal arguments of saying that I was a bona fide purchaser of value without notice and all those things. But that's just getting into a litigation, unnecessary litigation. So these are the rule of thumb that I would literally follow first before I would, even put my hand into the cookie jar. Krishna, which part of Pune do you have plot projects? Actually, I'm working in Logaon area, Yeah. and दूसरा जो एरिया है मेरा वो है तलेगांव. Yeah, Talegaon, Damdere, it's a different and near Shikrapur. Oh, अगर आपको मालूम होगा तो नगर हाईवे, नगर हाईवे. Yeah. So it's a total MIDC area. There is nearby Ranjangaon MIDC and Chakan MIDC. So Talegaon it's connected to Ranjangaon MIDC. So जो भी मेरा प्लॉटिंग चल रहा है वहाँ पे चल रहा है. वहाँ पे एक टाइम पे एयरपोर्ट की खबर थी. वहाँ काफी लोग कहते थे कि एयरपोर्ट उधर आएगा, मगर एयरपोर्ट वहाँ से शिफ्ट होके वेंट टू अनदर पार्ट ऑफ द सिटी. उससे आपके प्लॉट प्रोजेक्ट से कोई फर्क पड़ा? हाँ, एक्चुअली लास्ट टाइम जब चाकन में एयरपोर्ट आ रहा था तो काफ़ी सारे लोगों ने एक एग्रीकल्चर प्लॉट्स वहाँ पे लिए. जिनके पास बजट नहीं था उन्होंने लोन से लिया. काफ़ी लोगों ने फ्लैट लिए क्योंकि चलो आज नहीं तो कल वहाँ पे रेट बढ़ने वाला है, हमारा घर नियर एयरपोर्ट हो जाएगा. क्योंकि चाकन से आई थिंक पूना जो एयरपोर्ट है वो आई थिंक इट्स 40-45 किलोमीटर. तो लोगों को लगा कि चलो हमारे अगर नज़दीक में एयरपोर्ट आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे अपना घर बना लेते हैं या हम लोग यहाँ पे एक फ्लैट ले लेते हैं. तो जब उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया चाकन में,
और उनका इन्वेस्टमेंट होने के बाद जब सडनली उनको मालूम चला कि अब ये एयरपोर्ट पुरंदर में आ रहा है, तो मार्केट एकदम जो है डाउन हो गया था, क्योंकि लोगों को लगा कि नहीं, हमने बड़े विश्वास से प्रॉपर्टी लिया, अब हम चाकन में ले रहे थे, अभी सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसियां चेंज होती रहती हैं, क्योंकि जितने भी डेवलपर हैं या जो भी रियल्टर्स हैं या जो भी प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, उनका एक ही टैग लाइन था, या यू कैन से इट्स अ पंच लाइन, कि नियर एयरपोर्ट या नियर बाई एयरपोर्ट, जस्ट 4 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट। तो वो जो पंच लाइन था, तो लोगों के माइंड में एक चीज सेट कर दी थी कि हम जो घर ले रहे हैं वो एयरपोर्ट के नजदीक है। बट जैसे ही शिफ्ट हुआ, तो लोगों का एक थोड़ा सा, लोगों को हताशा जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, हमने तो घर इसलिए लिया था, या हमारा पर्पज ये था, या हमको लगा कि रेट बढ़ जाएगा प्रॉपर्टी का। बट वो सारा माइंड सेट जब चेंज हुआ, तो थोड़ा सा ये है कि चाकन का या नियर बाई जो प्लॉट का वैल्यू है या फ्लैट का वैल्यू है, वो डाउन हुआ है, एज माई नॉलेज। मगर जो तालेगांव और चाकन और रंजनगांव में आप जो कह रहे हैं कि वहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? उससे मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी? सॉरी, पardon? तालेगांव, चाकन वगैरह में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, उससे क्या इस मार्केट में उछाल आएगा? हाँ, एक्चुअली नगर हाईवे में अगर आप देखेंगे, तो जो क्लाइंट्स हैं या जो बेस है, वो 90% वो सारा MIDC वर्कर्स हैं, जो एक मिडिल टिकट साइज, उसको छोटा टिकट साइज उसको बोलते हैं हम लोग, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, या मैक्स टू मैक्स एक 6-7 लाख रुपए तक वो लोग, उनको प्लॉट चाहिए। तो अगर तलेगांव देखें, तो वहाँ पे सनसवाड़ी MIDC है नियर तलेगांव, चाकन का एक चाकन का भी एक MIDC पैच है, देन रंजनगांव का MIDC है। तो ये सारे जो MIDC हैं, इनकी वजह से क्या है कि कस्टमर जो है, उनका नीड है, उन्हें प्लॉट लेना है, उन्हें रहना है। और अभी हम बात करें लॉकडाउन की या ये सारी बातें करें, इससे देखा जाए तो उनको तो घर बनाना है, उन्हें में रहना है, चाहे वो उन्हें चाहे प्लॉट मिल जाए, चाहे फ्लैट मिल जाए, बट वो अभी भी कंटिन्यू करेंगे मार्केट में। पंकज, इस लॉकडाउन से मार्केट पे कोई असर पड़ा है? ऑफ कोर्स मैम, काफ़ी असर पड़ा है. Especially we are dealing in a West Pune. So West Pune is mainly driven by the mechanical and IT people. If you see, क्योंकि Chakan and Hinjawadi is like main MIDCs of the West Pune. So of course lockdown और ये COVID-19 से काफ़ी impact तो आया है अभी तक. Let's see अभी आगे क्या होता है. But the good thing is जितने भी हमारे clientele base है, those are from IT. उनका अभी salaries keep going on. अभी तक IT companies ने डिडक्शन किए नहीं है, तो वी आर गेटिंग गुड इंक्वायरीज. बट अभी बुकिंग्स के लिए तो काफ़ी मतलब ऑनलाइन, लाइक दे आर नॉट इवन 10% बुकिंग. हम लोग ट्राई कर रहे हैं ऑनलाइन बुकिंग लेने के लिए, बट जब तक क्लाइंट फिजिकली नहीं देखते हैं या साइड विजिट नहीं करते हैं, तब तक बुकिंग हो नहीं पाती है. इवन अक्षय तृतीया वॉज लाइक ऑलरेडी जा चुका है, जो वन ऑफ द हॉट फेस्टिवल रहता है रियल एस्टेट के लिए. तो ओवरऑल काफ़ी इम्पैक्ट तो आ चुका है, बट होप फॉर द बेस्ट. पंकज, आपके हिंदीवाड़ी है, चाकन है, यहाँ पे कौन सा प्लॉट साइज और क्या प्राइस ब्रैकेट सभी को इम्पोर्टेंट लगता है? देखिए, अगर मैं मेजोरिटी बात करूँ, तो जो क्लाइंटल बेस है अराउंड 20 लैक्स की टिकट साइज का ज़्यादा है. अगर मैं 100 आउट ऑफ बात करूँ, तो 20 लैक्स के बजट में ऑलमोस्ट 60% क्लाइंट्स फिट होते हैं, जिनके पास 20 लाख के आसपास दे आर लुकिंग फॉर द प्लॉट. एंड द साइज रेंज फ्रॉम 1000 to 2000 स्क्वायर फीट. Okay. And do they take bank loans? Actually, bank loans भी available है. If the property is NATP and RERA approved, then the bank loan is available. Even we have those properties also. But इस एरिया में आप देखेंगे, the majority are the freehold plots, जिसको गौठान plots भी बोलते हैं. उनका अभी ज़्यादा डील हो रहा है. But we have the both of them, NATP also and the गौठान plot. But NATP का थोड़ा सा साइज ज़्यादा है. That goes around 60-70 lakhs. Swapnil, when somebody buys a Gotham plot, what implications is that, the legal implications? When somebody buys, I couldn't hear that word. The Gothan plot. This is Right. See, Yes, ma'am, sir. according, yes, ma'am.
See, the implications will be the same thing. You will have to go through those kind of due diligence checks that you have to go through. If it's a registered RERA property, then you'll have to do that as well and ensure that this is all the compliances of RERA have taken place. Then the other thing is that you'll have to see whether any tax payment is overdue or not, because then otherwise what will happen is that any governmental encumbrance is the worst kind of encumbrance, because they'll have the first priority over anything else. So you'll have to ensure that it's free of all encumbrances. I just don't mean that mortgage of a bank. I mean even those kind of tax encumbrances, whether those taxes that have been paid on those kind of things, so that is very, very important. Otherwise, you have to be very, very careful before putting your hand into buying any property anywhere in this country, because violations are absolutely paramount. I mean, are rife, prevalent, and it's very difficult to say that ये property एकदम clean है और यहाँ पे हम लोग बेधड़क जाके buy कर लो, ऐसा वो कभी नहीं होना चाहिए. वो आपको सारा चेकिंग करना चाहिए. जितना भी होगा, ब्रोकर जो है अगर आपको हेल्प कर रहा है तो उसकी हेल्प लीजिए आप, क्योंकि वो ब्रोकरेज क्यों ले रहा है आपसे. सो वो सारी चीज़ें अगर आप जितना लॉ अबाइडिंग रहोगे और आप जितना लॉ एनफोर्सिंग रहोगे, वही उतना ही लॉ एनफोर्सिंग ब्रोकर रहेगा, बिकॉज उसको लगेगा कि नहीं भाई ये जेन्युइन आदमी है, इसको जो चाहिए वो सब कुछ ठीक ठाक चाहिए. नहीं तो अगर आप ही नहीं रहोगे उसके बारे में तो उसको तो उसके ब्रोकरेज से मतलब है, तो आपको कुछ भी चढ़ा देगा, आप पे कहीं पर भी कुछ भी ले लेगा. वो बोलेगा चलो मुझे तो काम है दोनों की शादी कराना, बात हो गई, फिनिश हो गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है बच्चे हो ना हो. To put it very in a layman's term. So it's extremely imperative that you go through all these checks and balances, because once you buy something, the seller is free, because he's sold it to you. Then he doesn't care. How are you going to catch him? Right. पंकज, गोठन प्लॉट लेने का implication क्या है? देखिए मैम, दोनों चीज़ों के एडवांटेज डिसएडवांटेज, जैसा कि सर ने कहा कि सबसे पहले तो लीगलिटीज का क्रॉस चेक होना चाहिए. 7/12 किसके नाम पे, इंडेक्स टू किसके नाम पे, इज द टाइटल इज क्लियर और नॉट. और मतलब अभी लाइक आई एम इन दिस इंडस्ट्री सिंस 12 years. अगर आप मेरे से पूछेंगे, आई हैव डील इन लाइक थाउजेंड्स ऑफ, अभी तक मैंने स्पेशली लैंड डील्स की हुई है. सो वी हैव अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस कि किस तरह से कोई भी लैंड खरीदनी है या बेचनी है, एक प्रॉपर वे होता है. और कभी भी मतलब कैसा है कि स्पेशली लैंड में थोड़ा सा कैसा रहता है कि आपको प्रिकॉशंस ज़्यादा रखने पड़ते हैं. इफ़ यू आर बाइंग अ लैंड, अभी हमसे लोग इसलिए लेना पसंद करते हैं बिकॉज रेफरल हमारे पास बहुत आते हैं. पीपल आर गिविंग अगेन लाइक बार बार हमें रेफरल से ही ज़्यादा बिजनेस आता है, अपार्ट फ्रॉम अगर हम नया एडवर्टाइजमेंट या नया प्रमोशन करते हैं. तो लैंड में एक रेफरल भी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर प्ले करता है, बिकॉज जैसा कि सर ने कहा कि लीगलिटीज का एक कंसर्न रहता है क्लाइंट्स को. तो अभी हमारी जितना भी सेल होता है, अराउंड 60-70% तो हमारा रेफरल ही आता है, क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारे से प्रीवियसली 5 साल पहले, 7 साल पहले या 2 साल पहले लिया हुआ था, उनको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो हमें रेफरल देते हैं. तो ठीक है. Krishna, how do you check the ownership of land in? ओनरशिप, हाँ जी, बताइए. Can I have no background sound, please? Swapnil, maybe you should mute yourself when you're not speaking. I'm sorry, can you see me now? I can see you, but I can hear some background noise. Okay. Just one second. I'll let. Yeah, it's just some noise was coming. Sorry about that. Yeah, sorry. Krishna, क्या किसी ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ से पुणे में प्लॉट का लीगैलिटी चेक कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली अगर हम लोग देखेंगे कि पूना में जैसे सर ने बताया अभी, काफ़ी सारे लॉयर्स जो हैं, एक माई इंडिया प्रॉपर्टी करके एक कंसल्टेंट हैं जो ऑल ओवर इंडिया में शायद प्रॉपर्टी सर्च करते हैं. जैसे कि अभी सर ने बताया था कि एक 55 साल का सर्च रिपोर्ट होता है. अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी पहले किसके पास थी, मीन्स 7/12 देन फेर फार. तो फेर फार क्या होता है कि जैसे मैंने प्रॉपर्टी ली आपसे और आपसे ली, फिर आई थिंक पंकज सर ने ली, तो वो प्रॉपर्टी किस किस के पास गई उसके एक नंबर्स होते हैं, कोड होता है, कोड वर्ड. तो उस कोड वर्ड्स के थ्रू या सर्च रिपोर्ट के थ्रू हम लोग प्रॉपर्टी का डिटेल निकाल सकते हैं. और अगर हमें और डिटेल लेना है तो पर्टिकुलर जो लॉयर्स हैं उनके काफ़ी सारे फर्म्स रहते हैं, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं या कंसल्टेंट रहते हैं उनके, तो वो लोग हमें प्रॉपर एडवाइस दे देते हैं.
सो सबसे पहले इज द पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पीएमआरडीए का कुछ साइट है जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं? हाँ, अगर आप देखें तो एक पीसीएमसी की या पीएमसी की वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे अगर आप जाके देखें कि ये प्रॉपर्टी, अगर मैं प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ लोगांव में, तो वहाँ पे मैं प्रॉपर्टी का लोकेशन, पुणे में कहाँ, हवेली में, या जहाँ भी आप जिस लोकेशन चाहते हैं आप, वो लोकेशन का आपको नाम डालना है। फिर वहाँ पे ऑप्शन रहता है, यू कैन जस्ट पुट एंड चेक, देन आपको सर्वे नंबर, देन ऑन, अगर आप चाहते हैं बाय ऑनर, बाय सर्वे नंबर, वो आप डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आपको जो है वहाँ पे डिटेल पूरा आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी किसके पास था, 7/12 पहले किसके नाम था, फिर 7/12 में कहीं कोई लिटिगेशन तो नहीं है, बैंक्स का कोई मॉर्गेज तो नहीं है, लोन्स नहीं है, वो सारी चीज जो है वहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं। पंकज, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम जैसा कि अभी मेरे कलीग बता रहे थे कि जो एक साइट रहती है मैम, एक जैसे आपको प्लॉट खरीदना है और आपको घर बैठे प्लॉट की समरी निकालनी है, तो जैसा कि मेरे कलीग बता रहे थे, यू कैन सर्च इंडेक्स टू ऑनलाइन। इंडेक्स टू ऑनलाइन आप जब सर्च करेंगे तो जैसा कि उन्होंने बताया, पहले तो आपसे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाएगा, वहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिए और नीचे फिर तालुके का नाम डालिए, और उसके बाद जो लैंड आपको पसंद है, जो भी गट नंबर या सर्वे नंबर आप देख के आए हैं उस विलेज के अंदर, आपको फिर वो डालना पड़ेगा। तालुके के बाद विलेज का नाम आता है और फिर गट नंबर और सर्वे नंबर, और फिर उसमें आप एंटर हो जाएंगे। जैसे कोई सर्वे नंबर 10 एकड़ का है, तो जिससे जिनसे आप ले रहे हैं उनके नाम पे कितना है, उनका नाम भी शो होगा। और अगर उन्होंने कुछ डील किया हुआ है, सपोज उन्होंने उस जिनसे आप खरीद रहे हैं उनके पास 40 गुंटा है और उसमें से उन्होंने 20 गुंटा सेल किया है, तो वो भी इमीडिएट रिफ्लेक्ट होता है। और इंडेक्स टू तो इतना ज्यादा अपडेटेड है, सपोज आज हम लोग कोई लैंड का डील कर रहे हैं तो विद इन एन आवर में इंडेक्स टू पे अपडेट हो जाता है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे आपकी रजिस्ट्री होती है, उसी तरह इमीडिएट इंडेक्स टू ऑनलाइन आईजीआर महाराष्ट्र की जो साइट है उस पर अपडेट हो जाता है। और आपको करना कुछ नहीं है, गूगल पे इंडेक्स टू ऑनलाइन आपको सर्च करना है, जो पहला आपको लिंक आएगा आईजीआर महाराष्ट्र की, आपको साइट पे जाना है और उसके अंदर एक ऑप्शन रहता है बिना शुल्क इंफॉर्मेशन, जिसको आप बोल सकते हैं कि फ्री में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वैसा एक ऑप्शन दिया रहता है बिना शुल्क इंफॉर्मेशन, उसमें आप एंटर करके ये सब डिटेल देख सकते हैं। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है वो प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पे है या नहीं। ऑफ कोर्स ये मतलब कैसा है कि काफी एक बेसिक है, और आप इमीडिएट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ फ्यू सेकंड आप ये चेक कर सकते हैं। और ये अच्छी बात ये है, डेली बेसिस पे अपडेट होता है। आज अगर किसी ने प्लॉट खरीदा तो उसका इमीडिएट लाइक इवनिंग तक उसका उस पे पर्टिकुलर लैंड पे इंडेक्स टू रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए वो दोनों मेल नहीं खा रहे हैं, जो ऑनलाइन है और जो आपका ब्रोकर बता रहा है वो दोनों मेल नहीं खा रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? हाँ तो ऑफ अपने कोर्स, फिर आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए और पहले प्रॉपर क्रॉस चेक करना चाहिए, उसके रीजन आपको जानने चाहिए, और एक आप बोल सकते हो कि लीगल एक्सपर्टीज से सलाह जरूर लेनी चाहिए उस। Swapnil, you want to say? Yeah, Jayashree, you see what happens here is that there is something like, what is the meaning of a Gauthan property? We call it Gauthan Yeah. in Maharashtra. Right. Gauthan is something which we say colloquially, but actually it's Gauthan, meaning it's Gaon, like village. It's part and parcel of the land which was going to be used for settlement. Maharashtra Land Record Code is something which you check, which defines under one section 122 the meaning of a Gauthan property. Now, there is a lot of hue and cry about whether this is legal, illegal. So that's the reason why you need to check Index 2, as he pointed out, and also Sadvara extract and all those kind of things. And then see whether the initial details that you look at are correct or not, whether they're in place. Now, if there is a discrepancy between what the broker is telling you and what is there on site, then definitely you have to go by what is there on the site and then try to show it to the broker and tell him that, look, this is what the site says. Now, what are you saying? So then, you better go and have a physical check of that property. Physically, उसको जाके आप देखो कि वो प्रॉपर्टी बराबर है या नहीं है, जो सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में वो सारा बराबर है या नहीं, तो वो सब चेक करने के बाद एनकम्बरेंसेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्सेट्रा वगैरह वगैरह जो मैंने बोला, वो सारा आप चेक करो। और जो फ्लो ऑफ टाइटल है, चेन ऑफ टाइटल, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, अगर ए टू बी में ही फॉल्ट है और अगर आप डी से ले रहे हो, सो दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम, एवरीथिंग एल्स इज फ्रॉडुलेंट।
or a defective, as we call it, as a defective title, not a fraudulent title necessarily, but a defective title. Suppose an A to B transaction of that land, whether it's a Gotan land or not a Gotan land. If it is stamped but it is not registered, and then by accident it has come from B to C and then C to D, where none of them have bothered to check whether it's registered or not. So that means that title is defective, because for a title to be proper and legally valid and tenable, it has to be both stamped and registered. Uh, And it won't be registered unless it will be stamped adequately. right. But what happens is that even if it is stamped adequately, sometimes people don't bother about registering. They say, "Abhi ho gaya na, abhi kya hai, zarurat hai, kya hai, let's say $1,000 or $5,000." But that's not correct. That's not the way to go about it. And I would not want to buy that property. I would want to go to the registrar, rectify the defect, and then buy a property, draft a rectification deed, execute that, and then go ahead and execute a purchase deed or a deed of sale, what we call it. So before the deed of sale, you must check that the title is correct and that it is also registered. It's not only Yes. stamped, but Only registered. then the title is correct. If it is stamped and registered, there has to be that goal tappa on that which Right. says sub registrar of assurances, that round seal. Right. If that seal is not there on every single page, that means you will not find it in index 2. I would be very surprised if it is there, because it's not been registered. So how it is there then? That means there is some hanky panky. Right. पंकज आप कह रहे थे. जैसा कि सर ने कहा कि मतलब रजिस्ट्री प्रॉपर होनी चाहिए, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जैसा सर बता रहे थे कि हर एक डॉक्यूमेंट का स्पेशल आईजीआर नंबर रहता है, जिसको आप डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन. एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट सिर्फ 100 रुपीज़ लेती है. सपोज आज मैंने 1 एकड़ का लैंड लिया है, उसको मैं सेल करने जा रहा हूँ. इफ क्लाइंट मेरे से डॉक्यूमेंट डिमांड कर रहा है कि मैंने जिससे परचेज की उससे क्या क्या लिख के लिया है, आपको जरूरी नहीं कि लैंड आपको जो सेलर है वो आपको डॉक्यूमेंट दे. आप बाय पेइंग 100 रुपीज आप पूरा का पूरा रजिस्ट्री डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब महाराष्ट्र आईजीआर महाराष्ट्र की साइट से. सपोज आज हम लोग कोई भी लैंड लेते हैं तो हम लोग लैंड ओनर से तो सारे डॉक्यूमेंट लेते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग सबसे पहले काम क्या करते हैं, बाय पेइंग 100 रुपीज ऑन आईजीआर महाराष्ट्र वेबसाइट, हम लोग जो उसने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है वो का पूरा हम लोग डाउनलोड करके लेते हैं. वो हर डॉक्यूमेंट आज आप अगर फ्लाइट भी परचेस करते हैं महाराष्ट्र में, या लैंड भी लेते हैं, या कमर्शियल प्रॉपर्टी भी लेते हैं, एवरी डॉक्यूमेंट इज स्कैन एंड अवेलेबल इन गवर्नमेंट स्टोरेज, जो आप क्लाउड स्टोरेज से डाउनलोड कर सकते हैं बाय पेइंग जस्ट मिनिमम फीस ऑफ 100 रुपीज. आपको एग्जैक्ट जो लिख के लिया हुआ है जिनसे आप जमीन ले रहे हैं कि उन्होंने जिनसे खरीदा है उनसे क्या क्या लिख के लिया है, वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो. तो एनए लैंड क्या होता है? एनए लैंड रहता है, देर आर नंबर्स ऑफ एनए, जैसे रेसिडेंशियल एनए रहता है, गोडाउन एनए रहता है, अलग अलग टाइप के एनए रहते हैं, फार्म हाउस एनए रहता है. एनएटीपी में करवाना पड़ता है. उसके लिए आपको अभी मैं कॉर्पोरेशन लिमिट्स के बाहर जाऊंगा तो जो पीएमआरडी का नियम है कि आपको मिनिमम 25 एकर्स का लैंड है, देन यू कैन गो फॉर द एनए रेसिडेंशियल. अपार्ट फ्रॉम दैट आप एनए रेसिडेंशियल आपको नहीं मिलेगा. 25 एकड़ का एक थ्रेशोल्ड जो पीएमआरडीए ने फिक्स किया हुआ है, और एनए एक बार एनए लैंड हो जाती है तो उसके बाद आप और कुछ उस पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. लाइक कितने भी साल हो जाए उसके ऊपर एफएसआई उतना ही रहेगा और उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे. फिर भले उसके ऊपर उस एरिया में कॉर्पोरेशन आ जाए या फिर उस एरिया में एफएसआई बढ़ जाए, एक बार एनएटीपी हो गया, देर आर सर्टेन कंडीशन जो डिसाइड हो जाती है, और उस तरह से ही फिर वो आर्टिकल होता है पूरा प्रोजेक्ट. Actually, agricultural land, can non-agriculturals buy agricultural land? Swapnil? No, you'll have to have a permission from the government for that, because you can't just go and buy an agricultural land. You have to be an agriculturist for that. I can't say that, look, I'm a professional lawyer, I've got some extra money, so I want to buy an agricultural land just because I'm willing to pay for it. And even if I'm willing to pay twice the size, the government is bound to ask you whether you are a farmer, why do you need the agricultural land, and you really need to have the permission. And I've known people who managed to get those kind of permissions, but that is not something which I would recommend to anybody. You better be an agriculturist or a farmer to buy those kind of things. You better have someone, to show some sort of an interest to the, the municipal authorities, saying that this is the reason why I want to buy an agricultural land. And a lot of people buy these agricultural lands because they know that there is no income tax on agricultural produce.
So there's another way of avoiding tax, which is perfectly legal. I mean, you're allowed to avoid tax. You're not allowed to evade tax. That's called tax planning. So if I'm buying an agricultural land which is tax free, in the sense that whatever the income from arising out of the agricultural land is tax free, but then I have to show that I'm an agriculturist. And how you manage that? That is something which you better do that very judiciously and appropriately and legally, because uh, it can create problems in the future. कृष्णा, आपने एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी बेचा हुआ है? और उसका कोई मिनिमम साइज होता है पुणे में? एक्चुअली पुणे में दो टाइप ऑफ दो माने अगर देखेंगे तो अलग अलग टाइप के लेआउट हैं। जैसे हम लोग बात करें थे गाँव था या जो एग्रीकल्चर प्लॉट, तो वहाँ पे 33x33 का साइज रहता है और कई जगह रहता है 1000 रुपये 25x40। सॉरी, आप दोबारा बताएंगे? अगर आप देखेंगे पुणे में, तो पुणे में अगर आप देखेंगे 99% जो प्लॉट हम लोग सेल करते हैं वो रहता है 1000 रुपये। आपकी आवाज़ चाहिए आपको? हाँ, हेलो। यस, हाँ जी, बताइए। बोलिए कृष्णा, हमें सुनाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे पुणे में जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, तलेगांव है या लोगांव है, वहाँ पे मिनिमम प्लॉट साइज है दैट इज 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट। राइट। एंड अगर आप देख रहे हैं कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अगर आप अकॉर्डिंग टू कस्टमर टिकट साइज, तो वहाँ पे हम लोग हाफ भी कर देते हैं, मतलब 500। Oh, done. I have some questions coming in as we discuss. There's Deepak Singh who says, "Sir, which document is required to prove that I am a farmer?" I'm sorry, I couldn't get the question. Which document is required? It's required to prove that I am a farmer, that I can buy agricultural land. Well, they must be having a farmer certificate to show that you are a farmer. Some kind of a certificate. That's what I would call. I don't know what else to call that. That it certifies that you are a farmer. That is something which you need from the government. Otherwise, I don't think so. You can go ahead and buy the agricultural land, because I have tried to do that once for a client, and they created a big ruckus until the fact that I had an agricultural certificate that I was an agriculturist, not a farmer. They use the word agriculturist. So if you have an agriculturist, they don't use the word farmer. That's a slang term. So it's an agriculturist. They use those kind of words which could encompass anything. It could mean a farmer. It could mean a producer. It could mean a tiller. I don't know. Then one has to go into the definition of agriculturist as per the Maharashtra Land Record Code, or their particular zonal laws which they have. पंकज, आप कुछ कहना चाहते थे? मैम, आपको अगर लाइक एग्रीकल्चर लैंड लेनी है महाराष्ट्र में, स्पेशली लाइक आई बीन टू कर्नाटक, आई बीन टू गुजरात, आई बीन टू मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे थोड़े ऑब्लिगेशन ज़्यादा है, मे बी बिकॉज महाराष्ट्र इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो अगर आपकी फैमिली में किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड है ऑल ओवर इंडिया, सपोज आपके ग्रैंड पा या आपकी फैमिली में या आपके फादर के पास कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में छोटा भी एग्रीकल्चर लैंड है, सपोज ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, उसका अगर आप कॉपी अटैच करेंगे एंड देन यू कैन बाय लैंड इन महाराष्ट्र। अपार्ट फ्रॉम कहीं पे भी, सपोज आप राजस्थान से हैं या आप आसाम से हैं, वहाँ पे भी अगर आपकी फैमिली ट्री में किसी के पास है, फैमिली ट्री इन द सेंस ब्लड रिलेशन में, सपोज आपके दादाजी के पास या पापा के पास, इवन आपके नाना के पास, तो उनका आपको फैमिली ट्री दिखाना पड़ेगा। कि अभी जैसे मेरे क्लाइंट थे, ही इज फ्रॉम एमपी, ही वाज विलिंग टू बाय अ लैंड इन पुणे सबब, उनको 1 एकड़ का लैंड लेना था, बट ही वाज नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र। तो उनके फैमिली ट्री में उनके अंकल के पास एमपी में लैंड था, तो उनके अंकल का हमने एक तो जो डॉक्यूमेंट था वो हमने अटैच किया। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका पूरा जो एक फैमिली के लिए जो सर्टिफिकेट लगा कि राशन कार्ड, उनका एक पुराना राशन कार्ड था जिसमें उनके अंकल और उनके पापा का नाम एक राशन कार्ड पे था, वो अटैच किया। तो फिर वो उस तरह से वो प्रूव हो गया कि ही इज फ्रॉम लाइक, इनकी फैमिली में ऑलरेडी एग्रीकल्चर लैंड है, और तब उनका फिर नाम फिर आ गया लैंड पे। Yes. Jayashree, I would still recommend that even if you have these things in place, it is always good that you have
something in your name, if you are going to buy that, your uncle could have owned something, your son could have owned something, your dad could have owned something, but it's better that you have something in your name. When you are going to buy that land, the document is going to be in your name, so it's best that you ensure something that it is there in your name, Of course. from the Where do municipal. you where do you go for that to be certified? Yeah, And so that's correct. So that's exactly what I'm coming to. You go to that place, which, see, you're going to go to the registrar, right, to get this document registered. You have the local municipality. You ask them that मुझे ये land खरीदना है. What are the requirements? And prefer they will always tell you, okay, so you will say, this is my family tree, blah blah blah, whatever whatever. Now tomorrow, I am going a step ahead. Tomorrow, if your grandfather who owns that particular agricultural land, there is nothing to stop him from selling it. If he requires money, he sells it and he makes money out of it. Now, in your case, in your records, there is no agricultural land except the one that you own. So tomorrow, if the government comes checking, saying that, okay, show me how you got this land and how come you own this land, you're going to say, अरे मेरे दादाजी के पास एक land था, उसके वजह से मुझे ये land खरीदने को मिला. They'll say, okay, दिखाओ कहाँ है दादाजी का land. Then I'll have to go and show him the sale deed of my dadaji. right. Now that's too much of a problem for me to go back and forth. So it's better that I have something in my name. This is my double check. I'm not saying that what my colleague is saying is wrong. He's right in what he's saying because he's done a deal. He's right. But as a lawyer, I would always look very far into the future and Right. prevent anything, because I want to be myself something to be able to buy. So what is that document that I should have if I want to buy that property? Correct. That's exactly what I'm saying. It's a certificate. It's some kind of a letter. It's some kind of a extract, if you would call it a document, because there is no name given to that document as such. We call it a title certificate when it comes to determining the veracity of the property. Right. The property sahi hai, ye hai, wo hai, and all that. We call it a title certificate. The government doesn't call it a title certificate. Right. We lawyers call it that way. So we are going to call it a certificate only. It's like a report card of my child. Right. I call it a report card. Somebody else calls it a grade card. So there is no Right. exact name. Yeah, I would call it an agricultural certificate. So I have no harm in saying that. No, Right. that okay, I am a farmer. So nobody can stop me tomorrow from buying another land. Right. You see, if I wanted to buy. हाँ, मेरा सर का जो मेरे कलीग अभी बोल रहे थे, हाँ जी. मैं ऐड करूंगा, जैसे सर ने बताया, अगर मैंने कोई प्लॉट मेरे फादर के नाम पे लिया या ग्रैंडफादर के नाम पे लिया, तो मेरे फैमिली मेंबर में मेरा भाई या मेरी सिस्टर है या मेरे फादर के कोई और भी रिलेशनशिप हैं, वो लोग कल जाके कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं. तो अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ और मैंने प्रॉपर्टी लेके मेरे डैडी के नाम पे या मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी मेरे भाइयों के नाम पे भी चली जाएगी. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी लोग ऑनलाइन है, वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने फैमिली में जो फादर्स हैं या मदर्स हैं उनके नाम करें, तो ये सोचे कि वो प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट उनके भाइयों की है, वो उनको देना ही पड़ेगा, वो उनका लीगल राइट है. Right. चाहे आपने कैसे भी लिया हो, पेमेंट आपने दिया हो, कैसे भी आपका कंडीशन रहा हो, बट बाय सैलरी इज द ऑनर ऑफ योर डैडी. Right. Right. जब आप ये करते हैं, actually, I'm going to stress this point one step further because I can see a lot of questions coming on this. कि मैं जब एग्रीकल्चरल लैंड खरीदती हूँ और आप कह रहे हैं कि पंकज ने बताया कि आपके फैमिली मेंबर में किसी में था, किसी के पास एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है इंडिया में कहीं पे, तो यू कैन एक्चुअली बाय एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, यू कैन सर्टिफाई योरसेल्फ एज एन एग्रीकल्चरिस्ट. नाउ स्वप्निल इज सेइंग दैट यू हैव टू गेट योरसेल्फ certified as an agriculturist before you buy the property to safeguard your own interest. Now, this certification is done in court. I have to go and No. It's the municipal authority. If they tell me that, look, you don't require anything, and this whatever, suppose your father is owning a property or your uncle is owning an agricultural land, then I would not go for it. I would say that, okay, if that's what you're saying, but I would still want some sort of a letter from the municipality. I would say that, okay, you give me this letter that I don't require anything myself to be able to buy this, because I don't want any hassles tomorrow, not only with you people, you municipality people who can change your colors in a jiffy, but I also don't want a problem with the income tax authorities tomorrow saying that आप तो एग्रीकल्चरिस्ट है नहीं, आप तो बड़े प्रॉपर्टी के बादशाह है और आप यहाँ सारी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं बम्बई में बैठ के जितने, और वहाँ पे टैक्स देते हैं, तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड कैसे लिया आपने,
एकड़ों के जमीन का, then it's I who need to go into an unnecessary explanation. And dealing with income tax authorities is like getting your tooth extracted. It's extremely painful. Because they don't, it's very difficult. Because you see, Jayashree, that there is an illegal point here. When you are dealing with a fiscal question, an income tax question, a money laundering question, or any law relating to finance, the burden of proof lies on me to show that money which I have in my account is legal, as opposed to a criminal case in a rape or a murder or a dacoity or a fraud. It's the opposite person who has to show that I have committed the murder. I can keep quiet till the rest of my trial gets over. And they have to prove that beyond reasonable doubt that it is I who has committed the murder. The burden of proof lies on them. But here the burden of proof lies on me to show that मेरा सर्टिफिकेट सही है, ये पैसा मेरा है, मैंने इनकम टैक्स अवॉइड करने के लिए नहीं किया है, मैं तो एग्रीकल्चरिस्ट हूँ. The entire burden is on me. So it's best that I have an additional document in my hand, which safeguards me for my own mental satisfaction. That I can show that this is what it is. Because then they'll ask, ये बाप दादा आपके है, कौन क्या proof है, ये बाप आपका है, दादा आपका है, land आपका है. They can go into hundreds of questions like that. I don't want that only. Because they don't trust anything. Whatever you have to say, if they are after you. So if you're buying a property in Pune, make sure that you're checking out its titles, the title search over the last 50 years. It's available online. You can pay a small fee and download the documents so that you have it with you. You should be going to your broker or your lawyer to make sure that you understand all this. I'm going to go to the next part of my show, which is what is the status of the Pune market today. Pankaj, अगर मुझे एक प्लॉट खरीदना है या मुझे एक बिल्ट अप प्रॉपर्टी खरीदना है, आपका एडवाइस क्या रहेगा? मैं तो प्लॉट ही सजेस्ट करता हूँ हमेशा से, बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग अ बिल्ड अप प्रॉपर्टी, यू आर बाइंग अ रेडीमेड स्टफ. लाइक आप अगर एक फ्लैट लेने जाएंगे, सपोज बानेर जैसे एरिया में, द कॉस्ट इज अराउंड 1 CR एंड अबव, राइट. बट इफ यू आर गोइंग टू बाय अ प्लॉट, सपोज आपका 1 CR में ऑलमोस्ट 3 to 4,000 स्क्वायर फीट का बानेर में प्लॉट आ जाएगा, राइट. And on that 3 to 4,000 square feet of plot, you can build around 5 to 6 flat, right? So overall cost अभी भी कम ही है. अगर आप थोड़ा सा, जैसे अभी लोगों को क्या हसल्स पसंद नहीं है कि हम प्लॉट ले फिर बनाए, बट इट्स नॉट दैट टफ. अगर आप छोटा प्लॉट लेते हैं, अभी जैसे रावेत इज वन ऑफ द रिसेंटली डेवलप्ड एरिया जहाँ पे मोस्टली लैंड इज रेसिडेंशियल जोन में ही है. वहाँ पे अभी अगर आप मेरे से पूछेंगे अराउंड 5 to 6 ईयर पहले की मैं बात करूँ तो रेट काफी कम थे. अभी भी 3,000 की रेंज में, 2,500 की रेंज में ही प्लॉट्स अवेलेबल है. और वहाँ पे अगर जैसे 2-3 लोग मिलके भी 4,000 स्क्वायर फीट का लैंड लेते हैं तो इजीली वहाँ पे 7-8 फ्लैट 10 फ्लैट तक का प्रोजेक्ट 4,000 की स्क्वायर फीट की लैंड पे भी हो जाता है. तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आप देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ ROI देखेंगे, तो खुद का लैंड लेके उसके ऊपर बनाना बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है. अगर आप डायरेक्टली बिल्डर से लेते हैं तो उसमें आपको उतना रिटर्न्स नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते जितना अगर आप खुद का लैंड लेके खुद उसके ऊपर डेवलप करेंगे. और उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा. टाइम आपको कहाँ पे कंज्यूम होगा? एक तो आपको लैंड डीलिंग में टाइम जाएगा, दूसरा आपको जो भी PMRDA से सैंक्शनिंग के लिए जो फाइल होती है वो अप्रूव होनी पड़ेगी, दैट्स इट. उसके बाद आपको सिर्फ एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को सर्च करके उसको कंस्ट्रक्शन के लिए देना पड़ेगा. बट अगर आप इन्वेस्टर है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक अच्छा प्लॉट देखिए. काफी अच्छे अच्छे प्लॉट्स अवेलेबल है अभी ये पैंडेमिक के बाद, तो और आपको अच्छे रेट्स पे मिलेंगे. और उसके ऊपर आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ अपना खुद का भी बिल्डिंग, लाइक इसमें ज्यादा कैपिटल लगता नहीं है. लाइक अगर आप देखेंगे कि आप अपना बिल्डिंग, लाइक अगर आप 1-2 करोड़ अगर आप फ्लाइट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उतने ही कॉस्ट में आपका खुद का बिल्डिंग भी आप स्टैंड कर सकते हैं. और उसमें आपको लाइक एक बार सैंक्शन हो गया फाइल तो आपको बैंक लोन भी इजीली मिलेगा. जैसे होम लोन मिलता है उसके बाद बैंक लोन भी मिलता है. अगर आप भले कितना ही छोटा प्रोजेक्ट हो, अगर आपका सिर्फ लैंड के ऊपर बिल्डिंग का लेआउट भी सैंक्शन हो गया, बाकी पूरा पैसा आपको बैंक देता है. आपको प्लॉट खरीदने के लिए बैंक लोन मिलता है या कंपोजिट लोन मिलता है कि प्लॉट खरीद के बनाने के लिए मिलता है? तो प्लॉट एक बार आपने प्लॉट खरीद लिया उसके बाद उसके ऊपर अगर आपका बिल्डिंग के लिए जो प्लान है बिल्डिंग मिल जाएगा, मगर प्लॉट खरीदने के लिए आपको बैंक लोन मिलता है.
प्लॉट प्लॉट खरीदने के लिए भी बैंक लोन मिलता है, बट ज्यादा लोग अप्लाई नहीं करते हैं, और थोड़ा सा कैसा है कि उसमें मतलब कैसा है कि मतलब ज्यादा फेमस नहीं है कि लैंड के ऊपर ज्यादा लोन लेते हैं। बट अगर आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं या मीडियम साइज के बिल्डर्स हैं, वो लोग यही करते हैं। दे आर गुड इन दैट। आपको थोड़ा सा फॉलो अप करना पड़ेगा, लैंड के लिए डॉक्यूमेंट जो भी लगते हैं बैंक को आपको सबमिट करने पड़ेंगे, बैंक अपने साइड से रिसर्च करेगा। ये पूरी प्रोसेस में ऑलमोस्ट 6 महीने का टाइम जाता है। बट प्लॉट क्रिस्टल क्लियर है, कॉर्पोरेशन एरिया में है, रेसिडेंशियल जोन में या कमर्शियल जोन में, तो प्लॉट के ऊपर भी लोन देता है बैंक। ओके। कृष्णा, आज प्लॉट का डिमांड ज्यादा है या फ्लैट का डिमांड ज्यादा है? अगर मेरा अनुभव अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि प्लॉट का डिमांड ज्यादा है। ओके, क्यों कहते हैं? अक्रॉस द सिटी या कुछ एरियाज में? मैं तो पूरे इंडिया की बोल सकता हूँ कि आज पूरे इंडिया में अगर आप मेट्रो देखेंगे तो प्लॉट का डिमांड ज्यादा है, फ्लैट का डिमांड बहुत कम है। और काफी सारे फ्लैट जो हैं, आप अगर आपको पता होगा, आप न्यूज देखेंगे तो काफी सारे फ्लैट जो है रेडी हैं, बट उनके लिए आज बायर नहीं है मार्केट में। बट अगर आप एक साइड में पुणे में देखेंगे, मेरे कलीग यहाँ पे हैं, पंकज, या आप डिस्कस कर सकते हैं इस मैटर पे, कि लोगों का अगर मैंने कोई प्लॉट डेवलप किया लाइक 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, तो वो प्लॉट जो है एक लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर वो सेल हो जाता है। मतलब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे तुरंत पैसा आता है। आपने प्लॉट लिया, डेवलप किया, डेवलप करने के बाद आपने डायरेक्ट सेल कर दिया। तो आज भी मार्केट में या फ्यूचर में भी मार्केट में प्लॉट का ही डिमांड ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको डेवलप करना या उसको सेल करना या उसको ऑन करना काफी इजी और माने कंफर्टेबल जॉब है मेरे हिसाब से। एक्चुअली हमने मैजिक ब्रिक्स में देखा है कि अभी भी अपार्टमेंट का डिमांड कहीं ज्यादा है प्लॉट से, क्योंकि प्लॉट को निगोशिएट करना एक डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए हम ऐसे शोज कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स लाइक यू कैन टेल अस what is it that you should do before you buy plots. But I want to ask you, Pankaj, if you are buying a plot, how long should you remain invested? एक investment horizon कितना होना चाहिए? मैम मिनिमम 5 to 7 years तो होना चाहिए। ओके, एंड कितना मुनाफा होता है उससे? एटलीस्ट आप डबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम में बात कर रहा हूँ। वीक मार्केट में भी ये हो जाता है? ऑफ कोर्स मैम, उसमें भी कैसा है कि आपको टाइम आपके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि कब आपको लिक्विडेट करना है। जैसे अगर आप अभी ये पेंडेमिक के पहले आप देख रहे थे, तो दिवाली के आसपास काफी अच्छा मार्केट था पुणे रियल एस्टेट। अभी थोड़ा सा सेटबैक आएगा, बट अगर आप ये सब कुछ ठीक होने के बाद फिर से मार्केट एक हाई पे जाएगा, तो आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं जो एक अच्छा रेट देने के लिए रेडी रहते हैं। Right. Swapnil, what are the things I should keep in mind when I look for a plot, especially when I'm buying in the peripheral areas? Most of the plot purchases are in the peripheral areas. Most of the, I couldn't hear the last. In the peripheral area. Right. So, well, the same rules of thumb apply in buying a plot, even in the peripheral areas. You'll have to check the same thing: the marketability of the title, whether it's the appropriate title, the title is appropriate, legally valid or not, and you'll have to see whether the seller is appropriate or not, in the sense that whether his antecedents are clear or not. And if those two are the most primary things, if those two are clear, then you'll have to go now the encumbrances, taxes, etc., and all of those things, whether the property, and then you go and check the index to land revenue records, etc. You go to the registrar, check of companies, if it's a company owning a property, if there are any encumbrances or not. So basically, you're going to do the same rules of thumb that I said earlier, and every single thing applies to any sort of property that you mentioned. Because But, these are the things that... Pankaj mentioned a case where multiple people could buy a plot of land together and develop it, Right. and have say 4,000 square feet of land and build about Right. 8 or 10 units. Now, what are the legalities that they should maintain right from the beginning so that there's no dispute later? Well, first of all, I think they should register themselves under the RERA Act. That is one of the things that they'll have to do. Now, if all 8 of them are going together to build something on a plot of land, then they must be having a document inter se between themselves, as to who's going to get what at the end of the day after building, and who's entitled to sell how much from those units that they're putting up. So that is the thing that you'll want to check. And before you
I would be a little hesitant to buy something which, if 8 people are putting up together, because I'll have to check the antecedents of all the 8 people together and see whether all 8 are proper or not. Because if should even one of them turn out to be a bad apple, then it could impact the property. So I'll have to go to the RERA, I'll have to check all those things, and I'll have to see whether this is something which I need to put my hand into or not. So this is something which is more onerous on me, rather than buying something which has been put up by 1 or 2 people, 2 partners in a place. But if there are 8, then that much the onus on me to find out whether all 8 of them are in order, whether one of them is not facing a jail record, etc., whatever. And most importantly, whether what he's putting up has got all the municipal approvals or not. That is the most important thing. And if he's put it up, then I just need to go and check that whether he's got the occupancy certificate before I go and buy, whether I could go and occupy. So, but whilst he's putting up, I'm not interested in how he got the loan and all that. That's none of my business. That's his business. All I'm trying to see is whether or not all the approvals and all the other rudiments are in place or not. That is something But which I would see. But 8 people is something I'd be a little difficult. रेरा will only kick in if it's 8 or more. 8 से कम है तो रेरा का registration नहीं है, right? Yeah, that is true. Okay. Actually, कृष्णा, जब एक प्लॉट खरीदते हैं तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखने के लिए क्या क्या होता है वहां पे, जैसे कनेक्टिविटी हुआ, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, आईटी यूनिट्स हैं, तो ऐसे कुछ हमें हमारे कंज्यूमर्स को बताएं कि क्या क्या देखना चाहिए बिफोर यू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड. Asking for me. Yes. कृष्णा. जैसे मैंने कोई प्लॉट डेवलप किया है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ हम लोग जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि अगर आप कोई प्लॉट लेने वाले हो या जो प्लॉट आप लेना चाहते हो, वो प्लॉट किसी और ने, किसी डेवलपर ने वो प्लॉट लिया है नियर बाई फार्मर से या लोकल फार्मर. तो पहले डेवलपर जो है वो कस्टमर है. पहले डेवलपर देखता है या जो ओनर है प्रॉपर्टी का, जो एकर्स में ले रहा है, 1 एकड़ 2 एकड़, वो पहले सारा चीज चेक करता है कि अगर मैं दूंगा तो ये कब तक सेल हो जाएगा, यहाँ पे नियर बाई हाईलाइट्स क्या हैं, एजुकेशन क्या है, हॉस्पिटल क्या है, MIDC क्या है, लोगों को जॉब कैसे मिलेगा. तो डेवलपर, मैं आपको बताऊं, अगर कोई रेपुटेड डेवलपर है जो अपने प्लॉट को लेके या अपने गुडविल को लेके काफी एक्टिव है, वो पहले प्लॉट वही लेगा जो प्लॉट नियर बाई डेवलपमेंट होगा. मीन्स अगर प्लॉट के नजदीक में हॉस्पिटल है, प्लॉट के नजदीक एजुकेशन हब है, या कोई कंपनीज हैं, या फिर काफी सारे ऑफिस हैं, वो प्लॉट वहीं पे लेगा. तो ये मेरे हिसाब से एक बेसिक, मैं जो लिसनर हैं उनको बता दूं, अगर आप कोई प्लॉट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले देखें कि आपके प्लॉट के नियर रोड फैसिलिटी कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, मीन्स कैब आपके यहाँ पे आती है कि नहीं आती है. सेकंड सबसे बड़ा है, बस स्टॉप नियर बाई है कि नहीं है. एंड थर्ड, ATM एंड बैंक्स वो वहाँ पे नियर बाई है कि नहीं, वो आप देखिए. और चौथा जो माइनर पॉइंट है वो है कि नियर स्कूल कौन सा. काफ़ी सारी फैमिलियाँ जो हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे जो कस्टमर हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए यहाँ पे नियर स्कूल कौन सा है, कितने किलोमीटर की नजदीक है, आप हमें बताइए. तो वो बेसिक पॉइंट मेरे हिसाब से ये 4 पॉइंट हैं जो कस्टमर ज़्यादा देखते हैं हर प्लॉट में, चाहे वो तलेगांव का प्लॉट हो, चाहे वो लोगांव प्लॉट. यस सर. Yeah. Swapnil, you want to say something? Is that the RERA has an exception for where the area of the land does not exceed 500 square meters or number of apartments do not exceed 8. Where that is where you don't have to register the number of apartments. So I just want to clarify number of apartments, not the number of builders or number of people who are promoters. That could be even one promoter, but if he wants to register this project which is exceeding 500. So I don't want the people who are listening to this to get it wrong. Yeah. Because, so I just wanted to clarify that. 500 meters and it should be less than 8 units, right? Absolutely, 500 square meters. Square meters and 8 units. Yeah. Get it. Pankaj, आप बताएं कि what are the things that add to the future value of a plot? ऑफ कोर्स आप लाइक कौन सी सिटी में ले रहे हैं और सिटी किस साइड ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है. अगर आप मेरे से पूछेंगे व्हाई आई एम इन्वॉल्व इन वेस्ट पुणे, बिकॉज पर्सनली मुझे ये एरिया काफ़ी पसंद आता है. बिकॉज मुंबई से जो प्रॉक्सिमिटी है इस एरिया की, बिकॉज एक्सप्रेस वे इज ऑलरेडी देयर. इंडिया का जो फर्स्ट एक्सप्रेस वे यहीं पे बना,
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो भी डेवलपमेंट, मैसिव डेवलपमेंट हो रहा है, आप देखेंगे हिंजवाड़ी आईटी पार्क, एशियाज बिगेस्ट आईटी पार्क इज ऑलरेडी देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे, अगर आप पुणे का हिस्ट्री निकालेंगे लास्ट 15 सालों का, कि जहाँ पे सबसे ज्यादा विलेजेस म्यूनिसिपल में इन्वॉल्व हुए, तो दिस इज अ वेस्ट पुणे. इफ यू सी बानेर, बालेवाड़ी, पाषाण, सुस, रिसेंटली मालुंगे, मान, उसके बाद आप वाकड़, थैरगांव, तातवड़े, पुनावले, रिसेंटली गवंजे, किवले, ये मतलब रैपिडली ये आप देखेंगे ये सब गांव ही थे और यहाँ पे कुछ भी नहीं था. लाइक आप अगर यहाँ पे 10 साल 15 साल पहले आते थे तो यहाँ पे रोड भी नहीं था, सब कच्ची सड़कें थी. जस्ट बिकॉज की मतलब यहाँ पे हिंजवड़ी आईटी पार्क आया, एक्सप्रेस वे बना, मुंबई का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फ्लो होने लगा, आईटी पार्क में ऑल ओवर इंडिया से लोग काम करने यहाँ पे आते रहे, तो बहुत ही रैपिडली यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है. अगर आप वेस्ट पुणे की बात करेंगे तो एक बार अगर आप सबसे, मैं तो कहता हूँ कि सबसे मेजर रहता है कि पॉपुलेशन और वॉक इन्स, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे काम करने, या सिर्फ आएंगे भी. अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसके पास में कोई बड़ा रोड बनता है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे रेट बढ़ना ही है, क्योंकि लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो एक हैपनिंग लोकेशन बनी जाएगी. अभी हिंजेवाड़ी आप देखेंगे, मोर देन 5 to 6 लाख पीपल आर वर्किंग, सो इट्स अ बिग मार्केट, और ये रैपिडली इंक्रीज हो रहा है. मतलब आप देखेंगे वेस्ट पुणे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा टाउनशिप लॉन्च हुई है. ब्लू रिश हो गई, मोर देन 100 एकड़, कोल्टेपाटे लाइफ रिपब्लिक, मोर देन 400 एकड़, उसके बाद एक्सरबिया हिंजेवाड़ी 200 एकड़, लोधा बेलमांडो इट्स मोर देन 180 एकड़. उसके बाद अगर मैं बात करूं मेगापोलिस, मोर देन 180 एकड़. अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे गोदरेज, पेनिनसुला लैंडमार्क, और इस तरह के वीटीपी, मतलब मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि जितना डेवलपमेंट हो रहा है बिकॉज देयर इज अ बिग जॉब हब और Yes. कनेक्टिविटी भी सही है, तो यहाँ पे लॉजिकली बढ़ना है, प्राइसेस बढ़ने हैं और यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स बढ़ने हैं. मगर अगर मैंने एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वाले एरिया में लिया, तो वहां पे हाउ डू आई असेस व्हाट इज द फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट्स गोइंग टू कम? Man, there are numbers of plans. Like we have one PMRDA से एक बहुत बड़ा पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट का प्लान है जो हम लोग परचेस करते हैं PMRDA से. उसमें आपको हर चीज डिटेल में मिलेगी कि कहाँ पे 120 फीट के रोड सैंक्शन है, कहाँ पे 200 फीट के रोड सैंक्शन है, कहाँ से रिंग रोड सैंक्शन है, कहाँ पे स्कूल के लिए लैंड रखा हुआ है. इवन जो म्यूनिसिपलिटी के बाहर वाले एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट आने वाला है, कहाँ पे कौन सी टाउनशिप सैंक्शन है, कहाँ पे कॉलेज के लिए जगह रखा हुआ है, वो पूरे हमारे पास पूरा प्लान है. काफी बड़ा प्लान रहता है वो. उसका सॉफ्ट कॉपी भी है. सॉफ्ट कॉपी तो मैं ऐसे नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो पीएमआरडी नहीं बोला है, आप अपने लिए रखिए. उसका एक हार्ड कॉपी भी है, वो हम सारे क्लाइंट्स को शो करते हैं कि यहाँ से ये रोड जाने वाला है, और वो ऑलरेडी रिजर्वेशन डाले जा चुके हैं. अगर आप पीएमआरडी का पूरा मैप देखेंगे, उसमें आपको फ्यूचर में आज से 10 साल 15 साल 20 साल के बाद कैसा आपको और डेवलपमेंट दिखेगा, वो आपको सब दिखता है उसमें. लाइक एक रिजर्वेशन आपको दिखेंगे कि यहाँ से इतने फीट का रोड सैंक्शन है. अभी आप देखेंगे रावेत बीआरटी रोड, उसका रिजर्वेशन बहुत पहले से डाला हुआ था, उसके बाद 2011 में वो रोड बना और फिर उसके बाद सब कुछ सामने आया. तो इस तरह से आपको सारे रोड्स आप देख सकते हैं कहाँ से कौन सा रोड सैंक्शन किया हुआ है पीएमआरडीए. So what Pankaj is saying is study the city plans and figure out where the next round of growth is going to be, because that will determine what the price of your land is. Krishna, आप कुछ कह रहे थे? अभी मुझे पता है इन्होंने करेक्ट कहा इन्होंने. अभी अगर आप कोई प्लॉट ले रहे हैं या कहीं डेवलपमेंट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से या सर भी यहाँ पे आप देखेंगे सारे प्लान पहले से ही हो चुके हैं. कहाँ से मेट्रो आ रहा है, कहाँ रिंग रोड आएगा, कितना रोड है, डीपी रोड कहाँ है, गाँव की जो फैसिलिटी है, स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट की यूनिट्स लगने वाली हैं, वो सारे पहले से ही प्लान है. तो उसके लिए हमें जो अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो डीपी प्लान में सारा चीज वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा. इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं. The last section of our show is around prices. What are how have the prices gone, and now with the lockdown, what is the impact on prices? Pankaj, I'm going to start with you. What has been the price trend in Pune's plot market, and how has it been impacted by COVID? And see, the prices are impacted, but the thing is
कि अभी जितना मैं पुणे के मार्केट को जानता हूँ, प्राइजेस ऐसे ही नीचे नहीं आने वाले, क्योंकि जो लोग होल्ड करके बैठे हैं, जो भी लैंडलॉर्ड्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंड होल्डर जो बेचते हैं लैंड, या जो भी बिल्डर्स है, वो कोई भी प्राइस ऐसे नीचे नहीं करेंगे। दे विल वेट टिल दिवाली कि प्राइजेस उस लेवल के आएंगे या उस लेवल पे लोग खरीदने के लिए रेडी होंगे। बट ये है कि आप बोल सकते हो 5 to 10% तक इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, जैसा कि आप शेयर मार्केट में देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50% नीचे आ गया है। तो ऐसा रियल एस्टेट में होता नहीं है, क्योंकि जितने भी लैंड ओनर्स बिल्डर्स हैं वो इजिली प्रॉपर्टी ऐसे रिलीज नहीं करेंगे। दे विल वेट फॉर कि सब कुछ ठीक हो जाए, फिर से सैलरी लोगों की शुरू हो जाए, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। उसके लिए ऑफकोर्स 2 3 4 6 महीने तक जाएगा, बट द मार्केट विल बी ऑन ट्रैक, तो सेम प्राइजेस कंटिन्यू होंगे। कृष्णा, एक गेटेड कम्युनिटी में खरीदना और नॉन गेटेड कम्युनिटी में खरीदने से प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पहले तो मैं आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपने पंकज से पूछा, या तो काफी मुझे अच्छा लगा। दैट्स व्हाई मैं जवाब में पूछता हूँ। या प्लीज गो अहेड। रियल एस्टेट में अगर आप देखेंगे काफी टाइम से डाउन हुआ है। मीन्स अगर आप देखेंगे जीएसटी है, नोटबंदी है, काफी सारी घटनाएं हुई हैं, बट लोगों ने या बिल्डर ने रेट डाउन की। जो भी जमीन का मालिक है, लैंडलॉर्ड है, या जो भी डेवलपर है, बिल्डर है, वो एक कंडीशन में वेट एंड वॉच, चलो और रुकते हैं, थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं। बट अगर आप उसको बोलेंगे कि सर हमें ये प्रॉपर्टी लेना है, या हम अभी मार्केट डाउन है, आप 5,000 की जगह आप 4,000 ले लो, या आप 2,000 ले लो, तो वो कभी भी मतलब एग्री नहीं होता है। सर ठीक है, आप एक काम करो, हमारे पास ले लीजिए, हम नेक्स्ट टाइम दे देंगे, किसी और को दे देंगे, अगर आपको रेट मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट है डेवलपर लॉबी में या बिल्डर लॉबी में, कि वो रेट को डाउन नहीं होने देते। लॉकडाउन में हम देखें 2 3 महीना अभी डाउन हुआ है, लोगों के पास काम नहीं है, पैसा लोगों के पास कहाँ है, वहाँ पे स्टॉक हो गया है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, उम्मीद है मुझे कि आने वाले टाइम में मार्केट में रेट डाउन नहीं होंगी, क्योंकि बिल्डर में काफी सारी कितना परसेंट डाउन हुआ होगा कृष्णा? अभी कितना परसेंट डाउन हुआ होगा ये पैंडेमिक में? अभी इस प्रॉब्लम को अगर हम देखेंगे तो पर माय एक्सपीरियंस आप बोल सकते हैं कि अगर 10 से 15% हो जाए तो बहुत ज्यादा है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा। सॉरी, आप गेटेड कम्युनिटी के बारे में भी बताना चाहेंगे? बताइए। अगर कोई कम्युनिटी है, गेटेड कम्युनिटी यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं हम लोग, या डेवलपर है, या कोई प्लॉट किसी ने लिया हुआ है, तो वहाँ पे रेट का एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, या पर्टिकुलर एक डेवलपमेंट रहता है डेवलपर का। वहाँ जो फैसिलिटी है, जो एमिनिटीज डेवलपर ने दी, वहाँ का नियर बाई क्लाइमेट है, या वहाँ पे जो व्यूज है, उसके आधार पर प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है। तो वो प्रॉपर्टी ना तो पहले भी डिपेंड ऑन मार्केट थी, ना पहले भी डिपेंड ऑन एरिया या लोकेलिटी। वो प्रॉपर्टी जो है पहले से ही प्लान और सिस्टमेटिक, उन प्रॉपर्टियों पे कोई भी असर नहीं आने वाला है, अगर आएगा एज पर एज माय नॉलेज 10 to 15% मैक्स टू मैक्स। Right. Swapnil, when somebody buys within a gated community, is that a safer option, considering that you're going to hold your investment for 5 to 7 years? I think so, definitely, because it's got its own set of rules. For pedestrians, for cyclists, for gymnasiums. For people who are coming from outside. What sort of entry they'll have, who they can meet, when they can meet. So it's more compact. It's more regularized. It's more regulated. The people who are buying in a gated community have that kind of philosophy that they believe in a particular way of life, and they're not going to love anybody outsider who's not going to fit in. And obviously that gives you much more of a safety. But then the flip side of that is that you tend to be more cloistered and more isolated in that sense, in that strata of people. You're not going to be free about it. You're going to move around only in those kind of circles, because it's seldom that I've seen people living in gated communities stepping out. They go out only for work, and then they come back, and then they say that this is my life, and the perimeter defines their life. So that is the big misfortune about it. But then, well, I guess it's people who prefer to live in isolated areas. It's their choice of life. They don't want to meet too many people. They're happy with whom they live and they meet, and that's their choice. Right. And that's where I'm going to wind up this show. Check your titles. Make sure that all the papers are in place. Krishna, you want to make a point?
पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे सर ने अभी एक पॉइंट बोला था कि लोगों को वैसे भी स्पेस चाहिए, दे वांट स्पेस। Yeah. तो अभी हम लोग देखेंगे तो लोग जो काफी, मैं एरिया के नाम लूंगा आपसे, जैसे एरवाड़ा एरिया है या भवानीपेट एरिया है, आई थिंक सर नो भवानीपेट एरिया, तो वहाँ पे आप देखेंगे लोगों के जो घर है काफी कंजेस्टेड है। मीन्स आपके घर के सामने मेरा गेट है, मेरे घर के सामने उसका गेट है, तो लोग काफी ज्यादा मीन्स उनको लग रहा है कि यार अब हम यहाँ से निकले खत्म हो, तो हमें काफी स्पेसेस प्रॉपर्टी लें, जब सारी फैसिलिटी हो, वहाँ पे सारी सुविधाएं हमें मिले और हम एक अच्छी लाइफ जी सके, घूमने के लिए काफी स्पेस हो, अभी लोग लेने वाले हैं। मेरे हिसाब से मार्केट में ये लोग आएंगे और अपना पैसा वहाँ पे लगाने वाले, जो मुझे लग रहा है, जो मैंने उनसे बात की। जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स अभी चल रहा है उसी की वजह से। हाँ। ये कि अगर ये सक्सेस हो रहा है ये लॉकडाउन, तो लोगों के एक बात है यार हमें दूर तो रहना ही है, सोशल डिस्टेंस रखना है, क्यों ना हम लोग घर भी दूर लें, क्यों ना हम लोग काफी स्पेस एरिया में रहें, ताकि फ्यूचर में हमें ऐसा प्रॉब्लम आए तो हम लोग पहले से ही प्री प्लान रहे। ये लोगों के मन में। पंकज आप कह रहे थे। मैं अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जी को सुन रहा था, वो बिल्डर्स को एडवाइस कर रहे थे कि आप सबब्स में जाएं या छोटी सिटीज में जाएं और वहाँ पे छोटे छोटे फार्म हाउस टाइप के आप घर डेवलप करें, ऐसा उन्होंने लाइक उनका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, नरेडको को लाइक स्पीच दे रहे थे। तो मैं गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट देना चाहूंगा, देखिए पीपल आर इंटरेस्टेड टू बाय अ पीस ऑफ लैंड, बट हर्डल्स काफी है, जैसे कि एक एग्रीकल्चरिस्ट महाराष्ट्र में, देखिए अभी मैं पीएमआरडीए की बात करूं तो कॉर्पोरेशन को छोड़ दें तो मोस्टली लैंड एग्रीकल्चर लैंड ही है, तो उस पे गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। जो विंडो है एक सिंगल विंडो करनी चाहिए। सपोज देयर इज अ एनीबॉडी हु इज हैविंग अ लैंड ऑफ 1 एकड़, वो अपने 1 एकड़ में भी एक गेटेड कम्युनिटी डेवलप कर सके, तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि पीपल आर इंटरेस्टेड टू बाय अ लैंड। अगर आप वेस्टर्न साइड जाएंगे, आप यूएस साइड देखेंगे तो वहां पे काफी ऑर्गेनाइज है, आपको लैंड लेना है, कन्वर्जन कराना है, इट्स प्रीटी सिंपल। अगर आप जैसे लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं वैसे ही आप लैंड कन्वर्ट करवा सकते हैं, बट ये एक लुक्रेटिव मतलब फैक्टर बना दिया है अभी लोगों ने, या मैं किसी भी अथॉरिटी को ब्लेम नहीं करूंगा कि सिर्फ जो बड़े बिल्डर्स हैं, इफ यू सी दे आर कमिंग विद 100 एकर्स 200 एकर्स और टाउनशिप, वो तो अपना सैंक्शन करा देते हैं, बट एक कोई फार्मर है, सपोज पुणे के सबब में एक फार्मर बैठा है, उसके पास क्या ऑप्शन है? अगर उसको लैंड डेवलप करनी है तो वो पीएमआरडी के ऑफिस में जाएगा, अगेन वो 25 एकड़ वाला कंडीशन है कि आप 25 एकड़ के अंदर आप डेवलप नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा सा काम करना चाहिए कि किसी के पास सपोज 40,000 स्क्वायर फीट है, 1 एकड़ का भी लैंड है, तो ठीक है भाई, उसमें से 15,000 स्क्वायर फीट आपका अमेनिटीज में जाएगा, इतना उसके लिए जाएगा, स्टिल यू कैन डेवलप दैट मच ऑफ रेसिडेंशियल प्लॉट्स। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट को प्रपोजल आना चाहिए, एंड इट्स नॉट अ बिग थिंग। एक गेटेड कम्युनिटी बनाना तो मैं कहूंगा कि बहुत इजी है प्लॉटिंग में। आपको बनाना क्या है? आपको रोड्स बनाने हैं, फुटपाथ बनाना है, अम्यूनिटी स्पेस बनानी है और पूरा बाउंड्री करना है। इट्स नॉट दैट रॉकेट साइंस। बट कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ये जो रूल्स रेगुलेशंस है, या सिर्फ बड़े बिल्डर्स के लिए जो रूल्स बने हुए हैं, अगर आप देखें, मैं से ब्लेम नहीं करूंगा, मैं खुद बड़े बिल्डर्स को फॉलो करता हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन। आप देखेंगे कि इसलिए रेट्स भी नीचे नहीं आते हैं और एक ही सर्किल में मार्केट घूम रहा है। आप देखेंगे इट्स नॉट, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी अभी तक उस लेवल की नहीं आ पाई है। तो मेरा कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट रहेगा कि स्पेशली लैंड बाइंग को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और एग्रीकल्चर टू रेसिडेंशियल करने के लिए एक सिंपल पैरामीटर होना चाहिए जो सबको पता होना चाहिए। Right. Agree. And that's, I think now we're completely out of time, and I will have to end this show. But thank you so much. You've brought a lot of sense into this market, that it's an opaque market. We need more transparency. We need to check all the papers. We have to get our documentation right, because later you will have problems. And like Krishna said, check the DP plans, check what future infrastructure is coming, because that is what is going to determine what your future value will be. Thank you so much for joining us. And I'm Jayashree Kurup, and this is the Property Show. Thank you everyone. Thank you.